Assalamu alaikum viewers. I'm Mr. Saidullah Khan. Viewers, in previous lectures I have discussed the prose chapter 1 Pakistan Zindabad part 1 lecture 1 part 1 we have discussed in our previous lecture. Today inshallah we will discuss the same chapter and but the part 2. Okay. Today we will discuss part 2 of the same chapter Pakistan Zindabad first year English Sindh board syllabus है ये बेटा और chapter 1 prose 1 का okay part 2 the same writer same book extracted from his book Qaid-e-Azam okay written by John Walton. Okay, it is a slogan of Pakistan means live long, we have already discussed. Now today what we are going to discuss in part 2. Part 2 we are going to discuss the background, okay, World War II. The background World War II inshallah study. Second, resolution of Pakistan. Third, creation the name Pakistan. Who created the name of Pakistan? Who was the person? What was his personality? Okay, how did he create this name? Inshallah we'll discuss here in this lecture. Okay. Fourth, we will discuss about here in part 2 civil disobedience. Civil disobedience, inshallah we will study about it and you will get it. Okay. Now, Dawn newspaper was published. Mr. Jinnah Qaid-e-Azam Muhammad Jinnah published a newspaper. That name is Dawn. Okay. Inshallah we'll discuss it. Next, Gandhi Jinnah talk. Very important paragraph. Gandhi Jinnah talk or very crucial talk it was means done over there. Okay. This decisions taken by Lord Mountbatten, and Lord Mountbatten the viceroy of viceroy in subcontinent from British rulers. Okay, so what he did, what he decided, what British decided, and what he decided, what British announced, and what he announced. Inshallah, we'll study it here. And the first year was terrible for Pakistan. We will also discuss here the first year very terrible for Pakistan, very crucial year for Pakistan. We have you can consider, you can think that we have nothing to means survive. Okay, like that is the condition, very pathetic condition of Pakistanis at that time. And Kashmir has been captured or seized by the Indians. Okay, and the death of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. These 10 points inshallah we will discuss in our part 2 lecture. Getting, do you listen me? Okay, now first we'll start here our chapter part 2, the background. First I'll discuss the background of World War. My dear, the first World War starts. First World War, when we talk about the first World War, so there are two World War. Okay, first World War start in 1914 and end in 1918. Okay, second World War start in 1913 and end in 1945. Okay, and this duration 1930 and 1945. So beta, this duration is also the very importance of this era, or these years are very important years for Pakistan as well, because at that time the movement of Pakistan were also on peak. Okay, and on the other hand there was a second World War has been broken down. दूसरी जंग अजीम छिड़ गई थी 1939 से, ये खत्म हुई 1945. It means the conditions of the world was very pathetic. Okay, especially the Muslims condition was very pathetic. Okay, I think so you have understood my lecture. Okay, try to understand my dear. Okay, and inshallah you will gain much more, and by the grace of Almighty Allah, inshallah you will also learn many things in this lecture. Okay, now they will continue here the background. My dear, the people were scattered. The people were just means we can say the बिखर चुके थे लोग, और अब वो चाहते थे कि कोई एक ऐसा
प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर सब मिल जाए, तो उन्होंने एक आवाज़ उठाई, स्पेशली द सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने। उसमें पहले रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आप देखिए पार्ट 2 जो आपका शुरू होगा इसमें बुक में, वो पहले से यहाँ से शुरू होता है कि 1940 इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट डेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख में 1940 जो एक बड़ी यानी हिस्ट्री का दिन है, बहुत बड़ी यानी कि रेड लेटर डे भी कह सकते हैं इसे, बड़ी खुशी का दिन भी है, कामयाबी का दिन भी है। बिकॉज ऑन दिस डे when the resolution was passed in 1940, when the resolution was passed in 1940, 23rd March 1940, at Iqbal Park, that is called Minto Park as well. Okay, so Iqbal Park mein today where there is the Minar-e-Pakistan is present there, जहाँ पे मीनार पाकिस्तान आज मौजूद है, उस जगह ये मंजूर हुई थी लाहौर में। What was the means decision taken in, and what was the resolution of Muslim wanted a new separate state. Okay, they demanded for those areas in which the Muslims are much in number, as compared to Hindus. So the Muslim demanded these areas could be given to Muslim, so that Muslim join them and make their own kingdom, okay, and the state. But my dear, when this resolution has been announced, okay, so Hindu and English, both Congress and the Hindu, both means dispose it, okay, or means oppose it, दोनों ने इसको, इंडियन न्यूज़पेपर ने तो इसको लिख दिया पाकिस्तान रेजोल्यूशन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन में आप देख लीजिए, पाकिस्तान रेजोल्यूशन में आप देख लीजिए कि देयर इज नॉट अ सिंगल वर्ड यूज ऑफ पाकिस्तान, ऑलवेज दे यूज द सेपरेट स्टेट ऑफ मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन चाहिए। अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि एक अलहदा वतन चाहिए, देखिए पाकिस्तान का तो उसमें नाम ही मेंशन नहीं किया गया है 1940 की पूरी रेजोल्यूशन में। आप देखिए इस रेजोल्यूशन का नाम था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी करारदाद मकासद था, मकसद क्या था कि एक अलहदा वतन चाहिए। When this resolution has been announced, okay, this resolution has been announced through by A.K. Fazlul Haq, means the tiger of Bengal, बंगाल का टाइगर कहलाता था, शेर बंगाल, उन्होंने इसको यानी प्रेजेंट किया। Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was also present over there under the supervision of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Okay, it has been passed. Okay, ये resolution passed हो गई, and really of course it was a very means red letter day, a very happy day, very successful day. It was a one of the victories, उन victories में से एक victory थी मुसलमानों के लिए कि उन्होंने अपने resolution पर, but Indian called this resolution in their newspaper the Pakistan resolution, okay, and they disagree, वो इस बात पे disagree हो गए कि they do not make them do like this, वो उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। My dear, तो हुआ क्या कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन जब पास हो गई, तो इसके बाद आता है the creation the name Pakistan, creation the name of the name Pakistan। My dear, the name Pakistan was created by very great, honorable, dignified and very highly educated person named Chaudhry Rahmat Ali. Chaudhry Rahmat Ali was created the name of Pakistan, and at the time it is written in your book, you can see in your book, it is clearly written over there. Chaudhry Rahmat Ali at the time was a student of Cambridge, okay, means कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे, कैम्ब्रिज में थे, ग्रेजुएट कर रहे थे, he was a student of graduate, a graduate student just created the name of Pakistan। how talented he was, कितने talented होंगे वो आप तसव्वुर कर सकते हैं। देखिए उन्होंने जो नाम पाकिस्तान जो तजवीज़ किया, बेटे the name Pakistan is acronyms, okay, P-A-K-I-S-T-A-N, Pakistan। My dear, P he has taken from Punjab, okay,
taken from Punjab. A for Afghania, Afghania, and K for Kashmir. He taken K from Kashmir. I for Iran, and S for Sindh, and TAN, this tan, Turkmenistan. Okay, Turkmenistan, Uzbekistan, or Afghanistan, like this. Okay, these it is written in your book. Okay, you can also see. I don't want to write, but I just mention it here कि तैन वो वाले इलाके जिनमें तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और मीन्स अफगानिस्तान, ये सारे तान वाले ये जो हिस्से थे जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, इससे मिलाकर उन्होंने पाकिस्तान बनाया है. इट इज़ एन एक्रोनिम्स. ओके, ये एक्रोनिम्स है, इससे लोग लफ्ज़ भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्रोनिम्स भी है. एक्रोनिम्स क्यों है कि वो एब्रीविएशन दे कैन बी प्रोनाउंस्ड, जो प्रोनाउंस्ड हो जाएं, ओके, उन्हें हम एक्रोनिम्स कहते हैं. ये भी पार्ट ऑफ एब्रीविएशन है. इसके लिए मेरा एक लेक्चर है बेसिक ग्रामर के नाम से. उसमें ग्रामर में उसमें लिखा हुआ है लेटर्स, अल्फ़ाबेट एंड वर्ड्स. फिर उसके बाद मीन्स मेरे पास इसमें एक्रोनिम्स है, एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है. एक please watch this lecture and you can understand what is acronym. So Chaudhry Rahmat Ali, we were talking about Chaudhry Rahmat Ali. So Chaudhry Rahmat Ali just created this name Pakistan in this way. So he just taken some letter from these areas of subcontinent and it has become Pakistan. This word Pakistan is the combination. This word Pakistan is the combination of two words, Pak and Stan. Pak means the pure, okay, and Stan means Zameen, okay, means spiritually pure land. Pakistan means spiritually pure land. This word has been derived from पर्शियन एंड उर्दू. फारसी और उर्दू से मिलाकर ये दो लफ्ज़ से बना है. उनके ये दो मुरक्कब अल्फाज को लेकर लफ्ज़ को एक लफ्ज़ बनाया गया है. तो इसे हम पाकिस्तान कहते हैं. दिस वॉज क्रिएटेड बाय चौधरी रहमत अली. इन विच ईयर, किस ईयर में द नेम ऑफ पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड? इन 1933. 1933 में पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया. गेटिंग? 1933 में पाकिस्तान का नाम तजवीज़ कर दिया गया. My dear, so we have already discussed about up to here the creation of Pakistan. The name of Pakistan was created. अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान का नाम 1933 में क्रिएट हुआ. आप सेकेंड ईयर में पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ेंगे, 9th में पढ़ के आए होंगे आप पाकिस्तान स्टडीज़. तो उसमें देखिए अक्सर बच्चे पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ने से घबराते हैं, लेकिन मैं इसमें एक टेक्निक्स बताता हूँ. इसमें जो है ना डेट्स जो हैं वो माइनस प्लस और मल्टीप्लाई पे चल रही हैं. अभी देखिए पाकिस्तान के नाम की तजवीज़ तक देखें 1933 में यहाँ लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा. इसमें 7 का एक फॉर्मूला लगेगा. ये जो 7 है ना, इसका एक फॉर्मूला लगेगा. इसको प्लस करें, देखिए कैसे पाकिस्तान बनता है. 1933 में क्या बन गया जनाब? ये क्या हो गया 1933 में? नेम ऑफ पाकिस्तान. सपोज नेम मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूँ NAME, नेम ऑफ PAK, पाकिस्तान. पाकिस्तान का नाम क्रिएट हो गया. 7 ईयर प्लस कर लीजिए, ठीक है. 1940 7 ईयर प्लस किए. 1940 में क्या हो गई? पाकिस्तान रेजोल्यूशन. ओके ओके, डू यू अंडरस्टैंड? पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ठीक है. एंड फिर 7 और प्लस कर लीजिए जनाब. लीजिए द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान मीन्स पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटेड. ओके, creation of Pakistan has been announced. Pakistan has become. Okay, पाकिस्तान बन गया. लीजिए 7 प्लस किया, 7 प्लस किया, 7 प्लस किया, चलिए पाकिस्तान बन गया. डेट याद रखने की इस तरह रटने की ज़रूरत ही नहीं है. इसी तरह जब पाकिस्तान स्टडीज़ का इंशाल्लाह कभी टाइम रहा तो आपको पढ़ाऊंगा, तो इंशाल्लाह बताऊंगा कुछ कि इसमें डेट वाइज किस तरह चलते हैं. ओके, कम टू द पॉइंट. ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद. तो चैप्टर है हमारा क्रिएशन द नेम ऑफ पाकिस्तान. ये नाम तजवीज़ हो गया. नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, अब हम नेक्स्ट पैरा में आएंगे. इसका जो नेक्स्ट पैरा उसमें ये लिखा है
कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी, तो बेटा ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैनी लीडर्स ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के जो बहुत सारे लीडर थे, मैनी लीडर्स मतलब बहुत से लीडर, व्हाट दे डिड, they made a mass civil disobedience, violated the rules. सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या, वायलेशन द रूल्स, रूल्स को वायलेशन किया, उन्होंने प्लंडर किया, जलाओ घिराओ मार पीट किलिंग्स और हम ये कह सकते हैं मैसाकर्स, ऐसे तो ऐसे लीडर्स जो थे उन्हें क्या कर दिया गया, बिहाइंड द जेल, उन्हें प्रिजन में कर दिया गया, ताकि सब कॉन्टिनेंट में एक पीसफुल इन्वायरमेंट जो है वो हो जाए और लोग सुकून में आए। वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से लोग जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। सो माय डियर, सो व्हाट हैपेंड, दे डिड सिविल डिसओबीडियंस, जब उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस की तो उन्हें बिहाइंड द जेल, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। नाउ दिस इज द वेरी गोल्डन टाइम, द गोल्डन टाइम फॉर मिस्टर जिना के लिए बड़ा गोल्डन टाइम था। He won the heart of his people, उन्होंने अपने लोगों के दिल जीत लिए और बड़ी मेहनत से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब देखा कि ये ऐसे खलफिशार पहनाने वाले, ये यानी कि मीन्स हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स फैलाने वाले, प्लंडर करने वाले, ये सब अंदर हैं, तो कायद आज़म को एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया एंड मिस्टर जिन्ना वन द हार्ट ऑफ द पीपल। देन मिस्टर जिन्ना, ओके, मिस्टर जिन्ना नाउ इज फार फ्रॉम हिज हेल्थ, अब मिस्टर जिन्ना अपनी सेहत बेचारे इनकी बहुत खराब हो गई, ओवर 70 से ओवर हो गए थे। नाउ एट दिस टाइम मिस्टर जिन्ना was unable to move place to place and address to the nation से एड्रेस करने के लिए जगह ब जगह नहीं जा सकते थे, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पता है क्या किया, रियली ऑफ कोर्स वाज अ वेरी टैलेंटेड, डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, रेगुलर, जितनी क्वालिटीज है लगा दीजिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे, इंशाल्लाह पूरी उतरेंगे। मिस्टर जिन्ना जो इतने कन्फर्म फीलिंग्स के मालिक थे, उन्होंने क्या किया, अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, हम ये कह सकते हैं कि नेवर गिव अप, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, नेवर गिवन, कभी हार नहीं माने, हौसले पस्त नहीं किए। तो क्या हुआ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पता है कि खुतूत लिखकर, लेटर्स के थ्रू, जब वो जगह जगह जाकर स्पीच नहीं कर सकते थे, तो लेटर्स के थ्रू उन्होंने अपने यानी मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, जो कारकुन्स थे, जो लीडर्स थे, उनको जो है क्या कहते हैं रहनुमाई की, गाइड किया थ्रू लेटर्स एंड means in this span of time he had a time to publish a newspaper, to write a newspaper। आपके पास इतना वक्त मिल गया कि आपने एक न्यूज़पेपर लिखा और उसे पब्लिश किया। जब ये न्यूज़पेपर मंजर आम पर आया, जिसका नाम डॉन रखा आपने, when this newspaper appeared, okay, in subcontinent, before it, so in subcontinent there was no Muslim paper, okay, one paper was there, the मौलाना मोहम्मद अली जो also published a paper कॉमरेड, कॉमरेड के नाम से मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक अखबार निकाला था। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि कायद हैं, बानी पाकिस्तान है, वो उनके लीडर्स हैं, उन्होंने जब ये न्यूज़पेपर निकाला था लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, वेलकम किया और लोग इसे लेते पढ़ते। एक्चुअली दिस पेपर is the best way of communication, ये एक बेहतरीन written communication थी मिस्टर जिन्ना to the leagues and to the English people, okay, and he wanted to just mention his vision, he wanted to mention his objective, वो अपने objects को mention करवाना चाहते थे। ये न्यूज़पेपर जिसका नाम डॉन न्यूज़पेपर है, माय डियर, आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पर, जब हम लिखते हैं डॉन न्यूज़पेपर, देखिए ये नजर आ रहा होगा आपको, DAWN डॉन, तो हम इससे पहले आर्टिकल द नहीं लगाते, हम यूं नहीं कहते द डॉन, यूं नहीं कहते, हाँ यूं कह सकते हैं द डेली डॉन, द DAILY डेली, DAWN डेली डॉन, ओके, यूं कह सकते हैं माय डियर, वी कैन स्पीक लाइक दिस, द डेली डॉन, because it's the name of Roznama Dawn। और द डॉन इसलिए नहीं लिखते, why we don't write the and जिससे ये लिखा जाता है डॉन, ओके। मुझे बताइए ये क्यों है, what is the reason behind it,
इसके पीछे क्या रीजन है? Do you observe? Do you look at the board? The board is clear. My dear, I wanna ask you. मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये बोर्ड पे आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है मेरे बच्चों? ओके, तो अब बताइए कि डॉन से पहले आर्टिकल दा क्यों नहीं लगता? क्या कोई आप में से बता सकता है? इसको असाइनमेंट दे दूं या यहीं बता दूं? चले बता देता हूँ यहीं पर। ओके, आपके लिए एक आसानी पैदा कर। इसके लिए सुन लीजिए, बहुत सी कहानियां हैं जो लोगों ने गढ़ रखी हैं, और बच्चों को आर्टिकल्स जब पढ़ा रहे होते हैं, स्पेशली द डेफिनेट आर्टिकल द, उस वक्त ये अपनी मर्जी से यहाँ पर कहानियां गढ़ देते हैं। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, बड़े लोग क्या कहते हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। जो सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहूँगा कि वही आप तक पहुँचे, ताकि अगर आप कहीं किसी के सामने बात करें तो मेरे बच्चे, यू हैव कॉन्फिडेंस एंड यू हैव अ प्रूफ, आपके पास प्रूफ भी हो। देखिए जनाब, अगर हम चाहें तो डॉन से पहले दा लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन इस न्यूज़पेपर से पहले क्यों नहीं लगा? द डॉन अगर बोलें तो गलत नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि डॉन एक ऑलरेडी पर्टिकुलर टाइम है सुबह का, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल दा नहीं लगता। माय डियर, मैं इसे नहीं मानता, ठीक है? ये कोई लॉजिक नहीं है। आइए लॉजिक और अप्रूफ के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे सुन लीजिए, when the movement of Pakistan was on the peak in subcontinent, so my dear, there were many parties, बहुत सी पार्टीज थी, लोकसभा पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी पार्टीज थी, मुझे तो नाम भी अभी याद नहीं है उसके, लेकिन सुन लीजिए, उनमें से एक पार्टी ऐसी थी जिसका नाम था द डॉन। उस पार्टी का नाम था द डॉन। सुन रहे हैं मेरी बात को? वो पार्टी थी द डॉन। वो अपने पार्टी के नाम से पहले आर्टिकल द डॉन लगाते थे। किसी पार्टी के नाम से पहले लगा सकते हैं द मुस्लिम लीग लगा सकते हैं, कोई लीग है कोई जमात, उससे पहले लगा सकते हैं। एक जमात थी द डॉन के नाम से, और वो मुसलमानों की जमात नहीं थे। इसलिए कायदे आजम ने ये किया कि अपने न्यूज़पेपर डॉन जो नाम उन्होंने सेलेक्ट किया, इससे पहले आर्टिकल दा इसलिए नहीं लगाया कि ये उनसे मैच ना कर जाए और लोग ये ना समझ लें कि उसी पार्टी का न्यूज़पेपर है और उससे तस्वुर किया जाए। इसलिए मिस्टर जिन्ना ने इसको बिल्कुल डिफर कर दिया और मुख्तलिफ कर दिया इससे, और इसलिए उन्होंने सिर्फ डॉन कहा। अदरवाइज इस नाम के साथ द डॉन न्यूज़पेपर के साथ तो लग सकता है, इस तरह करके द डेली डॉन, वरना सिर्फ डॉन कहेंगे, द डॉन कहेंगे तो ये उस पार्टी की तरफ इशारा होगा जो एक तरह से वहां पर सब कॉन्टिनेंट में एक पार्टी थी। गेटिंग अंडरस्टूड? एक जैसे मुस्लिम लीग है, इसी तरह एक उनकी एक जमात थी, कुछ उसमें विलन्स वगैरह टाइप के लोग थे, वो तो माशरे में वायलेंस और क्या कहते हैं फैलाते थे, इसलिए मिस्टर जिन्ना ने ये नाम नहीं रखा। अब आपको पता चल गया बेटा असल हकीकत क्या है। माय डियर, कोशिश कीजिए कि सही पढ़ें, सही समझें। इंसान है बेटा, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं बेटा। गलती होना इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती का बरकरार रहना, गलती मेंटेन रहे आपके पास, तो बहुत बुरी बात है, उसे दूर कर लेना चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास इतना वक्त था कि उन्होंने अपना न्यूज़पेपर पब्लिश कर दिया। माय डियर, इंग्लिश ऑफ मिस्टर जिन्ना मैचलेस, प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश मिस्टर जिन्ना मैचलेस, मैं तो यही कहूँगा मैचलेस प्रोनाउंसिएशन था। राइटिंग ऑफ मिस्टर जिन्ना यू कैन ऑब्जर्व ऑन इंटरनेट, आप इंटरनेट पे विजिट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, आप देखेंगे राइटिंग ऑफ मिस्टर जिन्ना कितनी प्यारी राइटिंग थी। अरे यूं कह लीजिए कि जिस फील्ड में देखते हैं मिस्टर जिन्ना को, तकरीबन मैं तो यही कहूँगा कि वह एक पूरे एक इंसान यानी उसको फुलफिल करते हुए नजर आते हैं। मैन ऑफ एक्शन है, सिर्फ मैन ऑफ वर्ड्स नहीं है, मैन ऑफ पंक्चुअलिटी है, क्या कुछ नहीं है मिस्टर जिन्ना। मैं तो मिस्टर जिन्ना को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा लीडर दिया था कि जिसने हमें इतना यानी कि अजीम वतन हमारे लिए बना दिया। आइए जनाब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। पॉइंट नंबर 6, गांधी जिन्ना टॉक। बेटा गांधी जिन्ना टॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉक इन दिस चैप्टर। माय डियर, 3 वीक्स की ये टॉक है, उसमें लिखा हुआ है 3 वीक्स की
टॉक मिस्टर गांधी एंड मिस्टर जिना, गांधी और जिना के दरमियान होती रही about the creation of Pakistan and the signing the documents of Pakistan, and many means problems had been shared over there, had been shared over there. वहाँ पे दोनों के दरमियान बहुत से डिस्कस हुए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना और गांधी में जब ये डिस्कशन हो रही थी, देखिए आपकी बुक में मैं आपको दिखा दूं, ये आपकी बुक में यहाँ पर पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है, पैरा नंबर 3 है, पेज नंबर 3 पर गांधी जिना met for 3 weeks of talks in a last attempt to reach an agreement। ये देखिए आपकी बुक में यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, अगर आप देखना चाहें, ये आपको अगर क्लियरली तौर पर नज़र आ रहा है तो आप इसे देख लीजिए कि गांधी और जिना टॉक इसमें मेंशन है। ठीक है, समझ आ रही है बेटे ये बात, आपके नज़र आ रहा है? सो लुक एट केयरफुली एंड देन यू कैन ऑल्सो लुक एट योर बुक, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इतनी बात कह दूँ कि जिना सेड दैट इंडिया मस्ट बी 2 nations not 1। गांधी रिप्लाइड दैट this world mean ruin for all India। ओके, गांधी ने और गांधी और जिना में जब टॉक शुरू हुई तो मिस्टर जिना ने, उसमें से ये बेटा एक्सट्रैक्टेड है, फुल टॉक नहीं है, कंप्लीटली टॉक नहीं, चंद बातें इसमें से ली गई हैं। बेटा जब गांधी और मिस्टर जिना में ये टॉकिंग हुई तो मिस्टर जिना ने कहा कि इंडिया में 2 कौमें रहती हैं, एक हिंदू दूसरे मुस्लिम। तो गांधी ने कहा इट मीन्स मिस्टर जिना यू ruined us, तुमने हमें रुइन कर दिया, तबाह और बर्बाद कर दिया। गांधी तो ये समझते थे कि इस इंडिया में सिर्फ 1 नेशन है, और वो कौन सी है? वो हिंदू। वो हिंदुओं को पता नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते। बेशक नो डाउट हिंदू वर्ड मेनी इन नंबर्स, नंबर में बहुत थे, बेशुमार थे, 1/3 का रेशो था हिंदू और मुसलमानों का। मैं डेर क्या करते। तो इसमें देख लीजिए एक बात और, फिर कहते हैं कि गांधी रिप्लाइड दैट this would mean ruin for all India। There could be no agreement between 2 men so different। Jinnah was as usual very severe and firm, faultlessly dressed। Gandhi wore his familiar white dhoti and sat on the floor। Okay, and the one was a Muslim first and last, the other a Hindu to his fingertips। Jinnah might have said then what he once said of the Hindus and Muslims, we are different creatures, there is nothing in life that join us together। ये जो मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है इसमें सुन लिया होगा आपने कि मिस्टर जिन्ना ने गांधी को क्या रिप्लाई किया। गांधी ने कहा किसका ना तुमने हमें तबाह कर दिया। मिस्टर जिन्ना ने कहा ये 2 डिफरेंट काइंड्स के जो लोग हैं, नेशन, ये कभी आपस में नहीं मिल सकते। तो उसमें फिर मिस्टर जिन्ना ने ये भी कहा, मिस्टर जिन्ना ने कहा कि जनाब 2 डिफरेंट क्रिएचर्स हैं हम। शायद वो इस बात को मीन्स उन्होंने पहले भी कभी कहा था, तो कह रहे हैं कि वी आर 2 डिफरेंट क्रिएचर्स एंड 2 डिफरेंट क्रिएचर्स कैन नेवर बी जॉइन टुगेदर, कभी आपस में एक साथ नहीं मिल सकते। पहले कहा 2 नेशंस और फिर कहा कि 2 डिफरेंट क्रिएचर्स। माय डियर मिस्टर जिन्ना ने इनडायरेक्टली बहुत बड़ी बात कह दी है, अगर आप समझ रखते हो तो। देखिए बेटा क्रिएचर किसे कहते हैं? क्रिएचर मखलूक को कहते हैं। इंसान एक मखलूक है, जानवर दूसरी मखलूक है। अब जानवर में कई किस्म के जानवर है, वो सब जानवर हैं, वो दूसरी मखलूक है। एनिमल्स दूसरी मखलूक है, इंसान एक दूसरी मखलूक, हशरातुल अर्ज़ एक तीसरी मखलूक है, नबातात ये चौथी मखलूक है, हजर शजर ये सब मखलूक है अल्लाह ताला की। अल्लाह ने इन्हें खल्क किया है, मछलियाँ, पानी के जानवर, सब अलग अलग मखलूक है, तो सब अलग अलग क्रिएचर। लेकिन इंसान जब कहा तो इंसान में अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात में से बना, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। ठीक है, इंसान को तमाम मखलूक़ात में अफजल तरीन इंसान को कहा, अभी मुसलमान को नहीं कहा, इंसान को कहा। ठीक है, तो इंसान को अफजल है, तो इंसान में तो सभी आ जाते हैं, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, पर्शियन, अरेबिक, सारे के सारे आ जाते हैं, इंग्लिश वगैरह सब आ जाते हैं। माय डियर ये सभी तो इंसान है। तो फिर मिस्टर जिन्ना ये क्यों कह रहे हैं? व्हाई मिस्टर जिन्ना सेड दिस? मिस्टर जिन्ना ने ऐसा क्यों कहा कि 2 डिफरेंट क्रिएचर्स? मिस्टर जिन्ना ने बता दिया, बिल्कुल वाज़ेह कर देगा, आपकी समझ में आ जाए कि मुस्लिम इज एन अदर क्रिएचर दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग, और you are dash question mark।
he said, but he did not said you are animals. ये नहीं कहा आपने, आपने वाज़ेह तौर पर यानी इनडायरेक्टली तौर पर बहुत बड़ी बात और बिल्कुल क्लियरली कह दी, जिसे समझने वालों ने समझ लिया। गांधी और जिन्ना टॉक, गांधी और जिन्ना टॉक की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, फिर इंशाल्लाह आपसे इजाजत चाहूंगा। ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे गांधी जिन्ना टॉक तक इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर अगले इसमें इंशाल्लाह वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। तो सुन लीजिए एक बड़ी बात, गांधी और जिन्ना टॉक में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये किस हद तक सच है मैंने इसकी तहकीक नहीं की है इतनी, लेकिन बहुत से मुस्तनद लोगों से सुना है इस बात को कहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो आप भी तहकीक कर लीजिएगा कि गांधी और जिन्ना टॉक जब हुई तो गांधी आते हैं जो अपनी वाइट धोती पहने हुए हैं, लेकिन वो आते हैं और जाकर उस फर्श पर नीचे बैठ जाते हैं। मिस्टर जिन्ना आते हैं, जो माइक था वो वहाँ स्टैंड पर यूं रखा हुआ है माइक, और मिस्टर जिन्ना आते हैं उस माइक के पास आकर ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। अब मिस्टर जिन्ना जो थे उन्होंने स्पीच करनी थी, तो मिस्टर जिन्ना ने क्या किया कि कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने लिखे हुए थे वो निकाले और उसे देखना चाहा। तो जाहिर सी बात है मिस्टर जिन्ना की एज ऐसी हो चुकी थी तो उनकी आई साइट थोड़ी वीक थी, तो वो ग्लासेस लगाते थे। अच्छा, उनके डिफरेंट काइंड्स के ग्लासेस थे, जिसमें ये हैंडल होता है ये भी था, कवर सपोर्ट जो होती है, और विदाउट वाले भी थे। उसमें सिर्फ ये फिक्स्ड आईज ग्लास थे, यानी आंख पे फिक्स हो जाते थे, वो ऐसे थे, सिर्फ पीस ऑफ ग्लास थे। तो मिस्टर जिन्ना ने अपने पॉकेट से पीस ऑफ ग्लास निकाला और वो यहाँ फिक्स करने लगे कि उसे देख कर पढ़ ले। तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, वो जो गिलास था ना मिस्टर जिन्ना का, वो स्लिप हो गया और वो ऐसे रोल होता हुआ बिल्कुल इत्तेफाक देखिए कि गांधी के बिल्कुल पास कदमों में जाकर रुक गया। अब मिस्टर जिन्ना को जाहिर सी बात अपने पॉइंट देकर स्पीच करनी थी। मिस्टर जिन्ना ये सोच रहे थे कि अगर मैं इसे उठाने के लिए झुकता हूँ तो पूरी आवाम क्या कहेगी कि मिस्टर जिन्ना गांधी के आगे झुक गया। और गांधी ये सोच रहे थे कि अब तो कायदे आजम ने मेरे आगे झुकना ही है, तो मैं पूरी आवाम को बता दूंगा कि देखो जाते जाते भी मैंने मिस्टर जिन्ना को अपने आगे झुका दिया है। तो मिस्टर जिन्ना, मैंने कहा था आपको, बहुत टैलेंटेड, खुदा दाद सलाहियतों का मालिक, अल्लाह ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा था। मिस्टर जिन्ना ने क्या किया, मिस्टर जिन्ना ने सबको हैरान कर दिया। मिस्टर जिन्ना ने अनदर पीस ऑफ ग्लास, एक और दूसरा पीस ऑफ ग्लास जो वो इस आंख में लगाते थे, वो निकाल लिया और उससे वो देखकर फिर अपने उन्होंने स्पीच की। और जब ये स्पीच खत्म हो गई तो लोगों ने मिस्टर जिन्ना से क्वेश्चन किया, मिस्टर जिन्ना ये बताइए, अगर आपके पास अनदर पीस ऑफ ग्लास नहीं होता तो फिर आप क्या करते, फिर तो आपको गांधी के आगे झुकना पड़ता। देखिए उस शख्स का जवाब सुनिए, देखिए कैसा इंसान है। क्या कहते हैं मिस्टर जिन्ना, मिस्टर जिन्ना कहते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, Allah has given and bestowed me this ability. I could read this paper without seeing, but without see, यानी देखे बगैर, looking, without looking, I could read, मैं इसे पढ़ सकता था, because Mr. Jinnah has ability कि he could extempore speak, वो extempore बोल सकता है। वो तो पॉइंट इसलिए लिखे थे मैंने ताकि पॉइंट के लिहाज से जो है वो क्लियर हो जाए बात, टाइम इतना वेस्ट ना हो। लेकिन मिस्टर जिन्ना बगैर देखे भी पढ़ने की सलाहियत रखता है, ये है मिस्टर जिन्ना। माय डियर, आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसे कन्वे कीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इजाज़त दीजिए अपने टीचर सईदुल्लाह खान को। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।